کروں گا. السلام علیکم سر. بہت بہت دعا کر لیں, دعا کریں, آگے چلیں. کیا دعا کریں. سب سے پہلے تو ہم اعلان کوٹلی کے طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جو وعدہ کیا تھا وہ نیازی حکومت نے ابتدا میں ہی پورا کر دیا, جس کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. کیا محسوس کر رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ آج آپ کوٹلی میں اتنے اربوں روپے کی مالیت کے اعلانات کرنے جا رہے ہیں. کوٹلی کا بچے سے لے کے بوڑھے تک ہر بندہ خوشی سے سرشار ہے. اس وقت میں خود بازاروں میں ہم وزٹ کر کے آئے. اس وقت کوٹلی میں ایک ہی صدا ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کی حکومت اپنا پہلا کوٹلی میں تاریخی جلسہ کرنے جا رہی ہے. اس موقع پہ, خوشی کے موقع پہ, آپ بحیثیت وزیر اعظم آزاد کشمیر اور بحیثیت ڈسٹرکٹ کوٹلی کا بیٹا ہونے کے لحاظ سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, یہ منصوبہ صاحب کا حکومت اور سردار سکندر صاحب کے دور سے یہ شروع تھا. ان کو دلچسپی لے کے یہ انہوں نے اسٹیڈیم کی ابتدا کی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک میڈل کا میں بھی ایک نمائندہ ہوں. اور دوسرا وزیر اعظم آیا, ایک نے شروع کیا اور دوسرے نے اس کا افتتاح کیا. ہم نے صرف اتنا کیا کہ ان 4-5 ماہ میں جو ہے جتنے سابقہ حکومت کے معاملات تعمیر و ترقی کے ارتفاع میں پڑے تھے ان کو سپیڈ اپ کرائے, چاہے وہ مظفر آباد میں تھے, میر پور میں تھے, کوٹلی میں تھے. اور پھر آپ دیکھیں, جب میں کوٹلی میں ہوں تو یہ سڑک آپ آج دیکھیں اس پہ بلیک ٹاپ سارے شہر میں بھی ہو گیا. شہر کی ساری ساری سڑکیں کمپلیٹ ہوئی اور ایک بڑا جو باجی صاحب کی زیارت کی طرف جا رہا تھا, ایک آدھا کلومیٹر کا حصہ یا اس سے زیادہ ہے, وہ بھی مکمل ہوا. تو یہ سپیڈ اپ کرانا ہے اور باقی کچھ چیزوں کو بھی. تو ہم نے جو کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ دنیا دیکھ لے گی. اور سب سے پہلا سٹیپ میں آپ کو اس بڑے اسٹیڈیم میں داخل ہونے سے پہلے قوم کے لیے خوشخبری ہم بلدیاتی الیکشن کرا دیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جنہوں نے ایک آج یہ کوٹلی کے کچہری کے جلسہ میں بہت ہی اہم ترین اعلانات کرنے جا رہے ہیں یہاں سے, اور آج کوٹلی کی تاریخ بدلے گی. یہ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کی حکومت, یہ جو اسٹیڈیم ہے آج یہاں پہ باضابطہ طور پر آج یہاں پہ افتتاح ہو رہا ہے. بس سارے ایزی وہ پائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زبردست زبردست. نیازی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار, نیازی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. موجود ہیں, ان کے ساتھ وزیر آئے موجود ہیں یہاں کا. ایک منٹ اسے آرام سے دعا مانگے صاحب ادھر دعا مانگے. آمین. بہت مبارک ہو جی. چلتے چلیں آپ بھی. جہاں پر وزیر اعظم آزاد کشمیر کو باقاعدہ بریفنگ دی جائے گی محکمہ اسپورٹس کی جانب سے. یہاں پہ اس وقت سیکٹری جو اسپورٹس ہے منصور قادر ڈار وہ یہاں پہ موجود ہیں. بریفنگ ہوتی باقی باقی لوگ رک جائیں بس.
लकड़िया साहब इधर आइए We really warmly welcome, sir, Prime Minister of AJK, Sardar Abdul Qayyum Niazi Khan Sahab, Malik Zafar Sahab, Ikhlaq Sahab, Marisi Sahab, तमाम शायकीन, अस्सलाम वालेकुम। सर मैं इसमें थोड़ी सी आपको इसके स्टेडियम के हवाले से थोड़ी सी ब्रीफिंग देना चाहूँगा। सर 2004 में कौंसल के साथ मिलकर कौंसल ने हमें एक ऑफ़र की कि आप हमें 3-4 जगहों के ऊपर ज़मीन दें, हम आपको स्टेडियम बना कर देंगे। तो एट दैट टाइम सर सरदार मरहूम सरदार सिकंदर खान साहब ने 4 जगहों पे उनको ज़मीनें दी। एक कोटली में 108 कनाल, 104 कनाल रावलाकोट में, इसी तरह डडियाल में और पलंदरी में। हुआ ये था सर कि हमने ज़मीन देनी थी, उन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी। तो सबसे पहले ये मंसूबा जो है 186 मिलियन का, ये वाला जो सिकंदर याद स्पोर्ट्स स्टेडियम है ये बना सर। इसमें सर 98 मिलियन हमने देने थे लैंड के और 88 मिलियन जो है वो सिविल वर्क और वगैरह इसका पवेलियन वगैरह बना। सर वो हमने तो ज़मीन दे दी, लेकिन वो जो 88 मिलियन मिलना था वो हमें तकरीबन 14 साल में सिर्फ 68 मिलियन मिल सकता। कभी 5 मिलियन, कभी 2 मिलियन, कभी 4 मिलियन कौंसल देता रहा, लेकिन ये एक मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी इस मंसूबे को अब हम नए रेट्स में बनाते हैं और 386 मिलियन का दोबारा मंसूबा बनाया। फिर वो 2007 से लेकर 2018 तक हमें फिर पैसों की वजह से, ना होने की वजह से इश्यूज रहे, लिटिगेशन रही, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो सका। 2018 में सर जब ये सारा आपको पता है सर बजट का कौंसल का AJK गवर्नमेंट के पास आया, तो हमने देन वी हैव डिसाइडेड टू मेक आवर ओन प्रोजेक्ट फ्रॉम आवर ओन बजट। तो हमने सर पहली दफ़ा 127 बिलियन का प्रोजेक्ट जो है, ये 127 बिलियन का प्रोजेक्ट अपने ADB से बनाया कि अब वो नहीं बन सकता। 2004 के रेट सर 2018 में कैसे हो सकते? उसमें सर ये 127 बिलियन में से तकरीबन हमने 26/12/2018 में शुरू किया और 27/12 को इसको मुकम्मल होगा। इस प्रोजेक्ट में सर कोई जब 126 मिलियन का काम शुरू हुआ तो कोई जब फील्ड में थोड़े से काम एक्सटेंशन कोई थोड़ी सी हुई, कोई रिवाइज हुई चीज़ें, तो हमने इसको 15% के ऊपर ख़त्म करके कि पहला फेज़ ख़त्म करते हैं और इसको रिवाइज करने की बजाय 15% में देकर हल करें। तो ये 15% में 146 बिलियन तक की इसकी कास्ट गई। इट मीन सर कि 146 मिलियन और 98 मिलियन और 68 मिलियन मिला के ये तकरीबन सर 30-35 करोड़ रुपया बन जाता है इस फेस्टिवल के लिए। ये उसकी सर है कि किस तरह से किस किस स्कोप है, कितना कितना बड़ा, और इसलिए ये 127 से 146 मिलियन में चले। ये सर इसका टोटल प्लान है पूरे का पूरा 108 कनाल का। ये आगे थोड़ा तफसील से जरा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये जो मेन पवेलियन की बिल्डिंग है, ये मास्टर प्लानिंग है जो जिसने ये डिज़ाइन किया। बेसिकली ये जो आपके सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये मेन पवेलियन की बिल्डिंग है
इसका 74,780 SFT एरिया है और इसके ग्राउंड फ्लोर में जहाँ आपने इनॉग्रेशन किया है ये रिसेप्शन एरिया है और उसके लेफ्ट एंड राइट पे डॉक्टर्स के रूम्स हैं और प्लस रिसेप्शन है, स्टोरेज है और टॉयलेट ब्लॉक्स हैं। उसके अलावा सर अगर उसके फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएं आपके बिल्कुल सामने जो ओपन एरिया नज़र आ रहा है ये प्लेयर्स का लॉन्च एरिया है। इसमें लेफ्ट एंड राइट साइड पे आपके सामने जो शीशे के लगे हुए हैं ये VVIP बॉक्सेस हैं और सर सेकंड फ्लोर में 14 सा रूम्स हैं जो क्रिकेटर यहाँ पे आके खेलेंगे उनके नाइट स्टे के लिए है। और उसी के अलावा जो टॉप पे आपको सर नज़र आ रहा है ओपन एरिया ये अंपायर्स का एरिया है, थर्ड अंपायर और मीडिया का एरिया। ये सर सिर्फ एक कंपोनेंट इसका मेन पवेलियन का अभी हमने कंप्लीट किया है। जो मास्टर प्लानिंग में सर जो चीज़ें हैं इसी तरह जो लेफ़्ट एंड राइट साइड पे ये जो आपको डार्क नज़र आ रही है ये सर शॉप्स, ऑफिसेज एंड टियर्स बनने हैं और उसके अलावा जो इसी बिल्डिंग के बिल्कुल अपोजिट बैक साइड पे स्पोर्ट्स बिल्डिंग बननी है जहाँ पे इंडोर गेम्स होनी है। ये सर जो यहाँ से आप इंटर हुए हैं ये अप्रोच रोड है 660 फुट ये हमने मुकम्मल कर दिया है। ये बताएं जी सर। बिल्डिंग बननी है जी सर। फेज वाइज है। जी सर फेस वाइज है। अच्छा ये जो फर्स्ट सर फेज है बेसिकली जो इसकी डिज़ाइनिंग एक ही हुई है कराची की AAA एसोसिएट्स ने इसकी डिज़ाइनिंग की है। डिज़ाइनिंग में हमें जो मिला है अभी हमने फर्स्ट फेज़ कंप्लीट किया है इसका अभी सेकंड फेज़ आना है। अच्छा सेकंड फेज में कौन सी चीज़ें हैं वो आगे सर है ये आगे चले चले जो आगे चले इसका काम कितना बताया है, कितना शुरू किया है ये बताएं। ये सर सेकंड फेज़ है। पहले मैं सर फर्स्ट फेज़ में जो चीज़ें कंप्लीट हुई हैं उसके बारे में आपको बता दूं। एक तो सर मेन पवेलियन की बिल्डिंग कंप्लीट हुई है। उसके अलावा सर 2400 रनिंग फीट इसकी बाउंड्री वाल है वो फेंस हो चुकी है। ग्राउंड की सर इंटरनल फेंस है 1800 फुट ये भी सर कंप्लीट हो चुकी है। ग्राउंड्स भी कंप्लीट हो चुका है। अप्रोच रोड जहां से आप इंटर हुए हैं वो कंप्लीट हो गया। ये सर फेज़ 1 में ये चीज़ें थी जो हमने वो सर ये इसमें सर दो है, एक जो रोड थी ना इस प्रोजेक्ट में वो तो बन गई है। जो इधर वाली रोड है ना सर ये कोटली डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो रोड्स की एक स्कीम है उसके अंदर है। ये उधर से सर ये जो इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ से आएगी और ये सीधी वहाँ पर जाकर मिलेगी। ये कब कर वो रहे हैं वो भी उन्होंने टेंडर्स सर चूंकि ये रबीन में सेक्रेटरी साहब ने उस वक्त डाली थी। बेसिकली सर जहाँ से आप बैक साइड पे आए ये रिंग रोड है सर। ये थ्रू आउट 2400 रनिंग फुट राउंड द क्लॉक जो है ना ये रिंग रोड है जो इस फेज में शामिल नहीं है। ये फेज 2 में जो आप यहाँ पे रिंग रोड और वॉकवे देख रहे हैं 2400 रनिंग फुट सर ये इसमें सर जो है ना फेज 2 में प्रपोज हुई है। इसके अलावा सर शॉप, ऑफिसेज और टीएस की जो मैंने बात की है लेफ्ट और राइट साइड इस बिल्डिंग्स पे जहाँ पे सामीन ने बैठना और ज़्यादा गैदरिंग जो लोग बैठेंगे वो उनके शॉप्स टीयर्स हैं टॉप पे प्री कास्ट के बनेंगे वो उस पे बैठ के तो सामीन इसको सब देखेंगे। थर्ड सर सब स्टेशन पंपिंग स्टेशन है चूँकि इसमें ग्राउंड्स के लिए या पूरी बिल्डिंग्स के लिए पानी का एक सेटअप जो है ना वो बनेगा जिसमें ऑटोमेटिक सर मशीनें लगनी है जो 24 आवर्स जो है ना वो मशीनरी यहाँ पे पानी प्रोवाइड करेगी। मेकअप वाटर फिलिंग सिस्टम है सर। इसमें सपोर्ट बिल्डिंग सर जो मैंने आपको बात की है 29,750 फुट जो ये बिल्डिंग है मास्टर प्लानिंग के तहत इसी के बिल्कुल अपोजिट आपकी बैक साइड पे ट्रिपल स्टोरी सर सपोर्ट बिल्डिंग बननी है जिसमें इंडोर्स गेम है बैडमिंटन या बाकी जो भी है किड्स एरिया है बाकी चीज़ें स्पोर्ट्स की अपनी जो ऑफिस वगैरह हैं वो सारे सर उसमें बनने हैं। जी सर प्ले एरिया होगा सर उसमें। प्ले एरिया होगा सेपरेट सर। सेपरेट कोई बनाया है, बना रहे हैं? ये सर फेज 2 में हम आपसे वही कर रहे हैं कि जो फेज 2 में हम बनाएंगे। अच्छा ठीक है मुझे ये बताओ फेज 2 में आपके पास इसका किस तरह आपने शुरू कहाँ से करना है, इसके बजट की तैयारी किस तरह है? सर बेसिकली हमने जब ये फेज 1 कंप्लीट हुआ था तो स्पोर्ट डिपार्टमेंट को ये सारी हमने कहा था कि क्योंकि सर एडीपी में शामिल होगा तो उसके बाद ही उस लिहाज से फिर ये इम्प्लीमेंटेशन। आपने भेज दिया है? जी सर हमारी तरफ PC1 से इसका कोई तैयार है? जी सर बिल्कुल तैयार है। फिजिकल प्लानिंग एंड हाउसिंग की तरफ से PC1 तैयार है तो इसमें चूंकि एडीपी में आएगा। साहब ये PND में है ये किधर? जी सर असल में इसमें ये था कि इनको ये था कि फर्स्ट फेज ख़त्म कर लेते हैं और जो सेक्शन मार्च में हमारा अगले साल का बजट बनना शुरू हो जाता है उसमें जो हमने सर प्लान पूरे 3-4 सालों का भेजा उसके अंदर ये डाला हुआ है अगले साल के इस एडीपी। ये आपको बिल्कुल कराएं। ठीक सर। इसमें मुझे बताना इस
चीज़ें हैं वो हमने पूरी करनी है और इस स्टेडियम को फाल बनाना है। ऐसे ना कोई चीज़ें रह जाती हैं, जब इफ्तिताह होते हैं तो बस ही हो गया, वज़ीर आज़म आ गए, हो गया सिलसिला, इस तरह नहीं छोड़ना, इसको मुकम्मल करना है। ठीक। अब मैंने सरदार सिकंदर मरहूम के जनाजे पर कहा था, आपने अच्छा किया सिकंदर हयात स्पोर्ट्स स्टेडियम के नाम से हमने ये किया है, लेकिन आज मैं जब देखता हूँ कि इधर मेरे अजीज़ हैं वो ठेकेदार आसफर अली भी, उनकी तस्वीर देखी है तो वो मुझे याद आ गए कि उनकी बड़ी इसमें बड़ा का अपना हिस्सा उन्होंने डाला एज ए कॉन्ट्रैक्टर। तो ये सारे जो लोग हैं मैं समझता हूँ कि उनका रोल रहा है, लेकिन सर मेरी जो है वो आपको पता है, ये हुकूमतें अगर तवज्जो न दें तो फिर हर काम जो है ना वो कमज़ोर पड़ जाता है तामीर और तरक्की का, बल्कि कोई भी काम हो। हमने इसको स्पीड अप करना है और ये आपकी सेक्रेटरी साहब जिम्मेदारी है कि आइंदा आने वाले बजट में इस स्पोर्ट्स स्टेडियम का जो है ना वो सेकंड फेज़ ये मुकम्मल करना है। ठीक सर, ओके। आगे क्या है इसमें सर? वही आगे इसमें स्पोर्ट बिल्डिंग है सर, उसके बाद स्कोर बोर्ड है, ग्राउंड लेवलिंग है सर, बाकी चीज़ें। जी सर इसमें हुआ ये लाइट वर्क में क्या आता है? ये लाइट वर्क में सर जो बाकी जो भी चीज़ें हैं मिसिंग सर, छोटी मोटी जो बिजली के, पानी के या बाकी जो चीज़ें सर मिस होगी, लाइटिंग वगैरह, वो हमने लाइट वर्क में सर शामिल की हैं। जो मिसिंग है और डिज़ाइनिंग में जो चीज़ें रह गई हैं वो हमने सर लाइट वर्क में इसमें शामिल करनी है। ये अपने तूफान के मुकाबले के लिए किया हुआ है ये स्टॉर्म वाटर ट्रैप। ये सर बिल्कुल राउंड द क्लॉक जहाँ से आप इंटरव्यू है शहर गेट का आप सारा पानी बाईपास का अंदर आ जाए तो आपने क्या नहीं सर, ये बाकायदा एक सर नाला बना हुआ है, पूरा ड्रेन मौजूद है सर, उसकी अपग्रेडेशन मजीद करनी है कि ताकि जो भी है ये सर नीचे ये जाता है। सारी चीज़ों का आपने अहाता करना है और इसको बड़ी तवज्जो से देखना है। ठीक सर। फिर मैं आऊँगा, मैं फिर पूछूँगा, जी, कोई ठीक। कोताही नहीं होनी चाहिए। और आज देखें, मैं शायद इस बड़े जलसे में कहूँ कि जो हमने चीज़ें कही हफ्ता 10 दिन के लिए 20 दिन के लिए वो PWD ने मुकम्मल की है, तो आपके लिए भी ये है कि आपका हाउसिंग है वो दूसरा है वर्ष का है, तो आप इसको कोई फंड्स हमारे लिए कोई मसला नहीं, ये मैं आपको बताऊं। मुझे नहीं पता लोगों के लिए क्यों मसला रहा। अब हमारे लिए कोई फंड्स कोई मसला नहीं, आपने हिम्मत करनी है, इसको बर वक्त मुकम्मल करना है और वो काम करने वाला आदमी ही इस फेज़ 2 में लगाना है जिसने आपको अपने विद इन टाइम ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करके देना। जी ठीक है। तो सेक्रेटरी साहब इसमें आपने रोल प्ले करना है, तो ठीक है फिर। जी सर। इसमें सर अभी भी इसकी जो है ना, आपको पता है सर 16 साल से ये रुका हुआ था, तो आप चूँकि हमारे स्पोर्ट्स के रिसर्च भी सर इंचार्ज भी हैं उसके, तो इसलिए आपके फ्री हैंड मिला है, तो हमने सर इसको 6 महीने के अंदर अंदर ये सारा मुकम्मल कराया है। तो इंशाल्लाह मज़ीद इस पर आपकी मेहरबानी। जितने भी और ठेकेदार हैं इसमें, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मौका आया है कि हमने इसका इफ्ताह किया है और लोग भी और पब्लिक और यूथ जो है वो इससे इस्तेफादा उठाएगी और हुकूमतों के काम करने के यही है। मैं समझता हूँ हमारी हुकूमत ही इस तवज्जो से, और मैं ऐसा प्राइम मिनिस्टर हूँ कि मेरा काम ही यही है तामीर और तरक्की। तो अगर ये हम कामयाब हो गए इसमें तो रियासत के लोगों को हमारी तरफ से यही PTI की तरफ से, इमरान खान की तरफ से तोहफा होगा कि जो वो हम काम करेंगे इंशाअल्लाह वो आम लोगों के लिए होंगे, सब के लिए होंगे, लोगों की नस्लों के लिए। इसमें मैं नहीं है ये कि PTI ये स्टेडियम PTI का होगा, स्कूल कॉलेज बनेगा PTI का होगा, और कोई अदारा बनेगा या रोड कोई बनेगी तो PTI भी उसी पर चले, सारे लोगों पूरी रियासत के अवाम के लिए ही होगा। मैं पहला समझता हूँ इंटरनेशनल मैच की नवीद आप कब दे रहे हैं कि इस कोठी में इंटरनेशनल मैच क्रिकेट का हो? ये मैं अभी तो नहीं भट्ट साहब कह सकता, ना मैं इसका खिलाड़ी हूँ कि वॉच करूँ और देखूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ जिस दिन पहला मैच हुआ आप आगे होंगे और मैं सामने बैठा हुआ। सर आप क्या महसूस करते हैं, ये 15 से 16 साल इल्तवा का शिकार रहा साबिक वज़ीर आज़म सरदार सिकंदर याद खान साहब का ये ख्वाब था और उसको आज आप अमली जामा पहना रहे हैं? ये ख्वाब मैंने अमली जामा पहना दिया है, और क्या करूँ मैं? क्या महसूस कर? नहीं महसूस ये कर रहा, मेरी इंतज़ार कर रहा था, और क्या महसूस। अच्छा वज़ीर आज़म साहब ये बताइए कि रातों रात करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट जो एक रात में कंप्लीट हो जाते हैं। हमने देखा है कोटली सिटी में आपकी आमद से पहले एक सड़क थी,
راتوں رات وہ پختہ کر دی گئی. اس طرح کے پروجیکٹس جو ہے وہ برسوں تک التوا کا شکار رہتے ہیں. آپ نے رنگ روڈ کا کہا, یہاں پہ رنگ روڈ بھی بنے گی. کیا یہ مزید اسی طرح برسوں انتظار کرنا پڑے گا عوام کو اس طرح کے منصوبے جو ہے وہ مکمل ہونے میں؟ یہ آپ نے جو پہلی گفتگو کی آپ کو پتہ ہے کیا کہا ہے آپ نے؟ جی کہ راتوں رات مکمل آپ کہہ رہے ہیں برسوں میں ہوں گے. نہیں سر, آپ کے آنے کی وجہ سے وہ راتوں رات شیر شاہ روڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایل او سی کے علاقوں میں لوگ اپنی مدد آپ کی. میں آپ کے سوال کا جواب اس طرح دوں گا کہ آپ کا سوال جس طرح بننا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم آئے ہیں کام کرنے کے لیے, ہم آئے ہیں رفتار بڑھانے کے لیے, ہم آئے ہیں لوگوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے کام کرنے کے لیے, ہم آئے ہیں لوگوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے, ہم آئے ہیں لوگوں کے پانی کے, صحت کے اور ایجوکیشن کے, انفراسٹرکچر کے اور اسی طرح کی کھیل کود کے جو میدان ہیں یہ جب سجیں گے تو بہت ساری تکلیفیں لوگوں کی ختم ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ آپ کو اسی طرح کی نوید آئندہ بھی ملتی رہے گی اور جو بھی کام اس حکومت میں شروع ہوگا وہ انشاءاللہ اپنے وقت مقررہ وقت میں ختم ہوگا, اس لیے کہ ہم پراپر طریقے سے نگرانی کرتے ہیں. ہمارا صرف اور صرف ان پروجیکٹ میں آپ صحافیوں کو, الیکٹرانک پرنٹ میڈیا, ہمارے منسٹر صاحبان ہیں, پبلک کے لوگ ہیں, اپوزیشن کے بھی یہاں کھڑے ہیں, میں آپ سب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میرا صرف اور صرف یہ انٹرسٹ ہے کہ اس ریاست میں جس شخص نے مجھ پر اعتماد کیا ہے وہ عمران خان ہے, کہ میں اس پر اعتماد پر پورا اتروں اور اپنے لوگوں کی خدمت پر کر سکوں. سر اب کیا ریاست کے مڈل کلاس لوگ, غریب لوگ یہ سمجھیں کہ اس ریاست آزاد جموں کشمیر میں ہماری فریاد سننے والے بھی کوئی وزیر اعظم, کوئی وزراء کی ٹیم موجود ہے؟ دیکھیں جی, میں بھی ایک گراس روٹ لیول کا پولیٹیشین ہوں, لیکن کچھ ہمارے جو بزرگ اسلاف دوسرے لوگ ان کو اللہ تعالیٰ نے ملکہ دیا ہوا تھا اقتدار کا اور سیاست میں اور پارلیمانی نظام میں دسترس کا, تو ہم نے ان کی شاگردی میں جو کام کیا ہے, میں کسی کو نہیں کہتا, ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق کرتا ہے اور کسی کو میں نہیں یہ کہتا کہ انہوں نے کیا 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 نہیں. یہ وقت بتائے گا کہ کسی نے کیا کیا, یہ تاریخ لکھے گی کہ کس نے کس دیانتداری سے اور کس خوش اسلوبی سے اور کس نے درد سے یہ کام کیا ہے. میں چاہتا ہوں, میں درد رکھتا ہوں اپنے لوگوں کا, بالخصوص ایل او سی ہے, آپ لوگ ہیں, شہروں میں آبادیاں بڑھ گئی, یہاں کھیل کود کے نظام نہیں ہوگا تو نوجوان نسل کے لیے مشکلات ہوں گی. میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کے لیے بڑی خوشی ہے, بڑی نوید ہے, اور آئندہ بھی ہم جتنے بھی پروجیکٹ کریں گے وہ عام لوگوں کے لیے, خواص سب کے لیے ہوں گے, ساری جماعتوں کے لیے ہوں گے, ساری اس بسنے والے کشمیریوں, آزاد کشمیر میں بسنے والوں کے لیے ہوں گے. ہم ان کے لیے ہیں اور ہم انشاءاللہ پوری, میں آپ کو یہ دیانتداری سے کہتا ہوں کہ ہم ہر وہ کام کریں گے جو ریاست کے لوگوں جناب وزیر اعظم آپ کا ممنون ہے سارے مہربانی کریں جلدی جاؤ شعبش, جلدی آؤ شعبش, اسٹیپ دیں. نے کہا کہ پہلا میچ جو ہے وہ یہاں پر ضرور ہوگا اور پہلا میچ جو ہے وہ یہاں یہیں سی گراؤنڈ کے اندر بیٹھ کے ضرور دیکھوں گا. اور آج جتنی بھی تقاریب
पेश करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म आज इस दुनिया में नहीं है, सरदार सिकंदर याद खान साहब जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी और आज इसका इफ्तिताह होने जा रहा है। और ये क्रेडिट आज जो इसका इफ्तिताही प्रोग्राम है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब को जा रहा है। तो कोटली में बहुत बड़ा टैलेंट है जी। आप KSL में देखें ना कि कोटली के काशिफ अली ने माशा ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, तो इंशाल्लाह ये स्टेडियम के बनने से जो है ना वो कोटली में बच्चों के अंदर जो टैलेंट है, लड़कों में टैलेंट है, वो इंशाल्लाह ऊपर कर सकते हैं। तो कोटली के लिए आज बड़ी खुशी का दिन है जी। तो वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ ला रहे हैं कोटली में और भी मेगा प्रोजेक्ट जो हमने अपने मंशूर में और जो हमने अपने प्रोग्राम में रखे। L10 कोटली 3 के लिए जब पूरे कश्मीर इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में जहाँ पर कोटली तशरीफ़ लाए थे तो हमने आप सब साफ़ी जायज़ सबको पता है कि हमने अपना एक पासनामा पेश किया था कि और सबसे पहले जो पासनामे में था वो यही था कि ये कोटली स्टेडियम का काम मुकम्मल होना चाहिए। कोटली में ट्रैफिक का एक जाम, लोड, रिंग रोड का आना ज़रूरी है। कोटली में हेपेटाइटिस, साफ पीने का पानी नहीं है। और कोटली DH के अस्पताल है जो वो सबसे बड़ा लोड उठाता है, ये सबसे बड़ा ज़िला है। तो ये बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह बिग सिटी आना चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म जो है ना वो यकीनन मेरे ख्याल में इन सारी चीज़ों के वो ऐलानात फरमाएंगे। बिग सिटी का ऐलान तो उससे पहले भी होता रहा जी कि अमली काम को होना चाहिए। वो इंशाल्लाह लगता है कि इंशाल्लाह अमली होगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पैगाम ये है जी कि यहाँ पर नून की हुकूमत 5 साल रही और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जन्नत नसीब करे सिकंदर याद साहब को उन्होंने अपने हाथों से वो हुकूमत बनवाई। उससे पहले भी हुकूमत ये 10-15 साल से ये स्टेडियम नहीं बन सकता। कोई जो बड़े मनसूबे होते हैं ये किसी ज़िले की और किसी रियासत की ये पहचान होती है। ये नियाज़ी साहब ने ऐलान किया था सिकंदर साहब के जनाजे पर कि इस स्टेडियम को मुकम्मल करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से 2 महीने के अंदर ज़िला कोटली की खूबसूरत तरीन ये मनसूबा जो है ये नियाज़ी साहब के हाथों जो है ये यहाँ पर ये कामयाब हुआ। आप देखें ये घास लगा हुआ है, काफ़ी लोग ये सारे का सारा जो स्टेडियम है। और इसके बाद नियाज़ी साहब ने इसके बाद जो है ये वो हल्का राजमहल में आता है ये दुखाड़ी वहाँ पर बनाया है, अपना पार्क बनाया, खूबसूरत तरीन कोटली का वो पार्क बना हुआ है। ये अड्डे से लेकर आप मलाजा करें कि 10 साल से मैं भी बाहर में पीटता रहा कि इस सड़क को बनाया जाए, ये लोग गुजरते हैं, ये फेस है हमारा। ये नीचे आर्मी रहती है, पूंछ के लोग जाते हैं, कोटली के लोग जाते हैं। 4 घंटे में वो रोड बनी, ये रातों रात 4 घंटे में नियाज़ी साहब ने हुक्म दिया वो रोड बनी है। ये देखें आप, ये थलेर कॉलोनी से लेकर ये ऊपर जहाँ पर हर रोज़ एक्सीडेंट होते थे, गाड़ियाँ गुजर नहीं सकती थी। पूरी आर्मी का एक नेटवर्क था, लोग आते थे, खस्ताल होकर जाते थे पूंछ के लोग। आज वो खूबसूरत तरीन वो सड़क बनी है। आज खूबसूरत तरीन ये स्टेडियम आपको जो है ये नियाज़ी साहब के हाथों अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े दिलदार आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं और काम करने वाले आदमी इंशाअल्लाह, यानी मजहबी आदमी हैं। मैं कोटली के लोगों से और आज़ाद कश्मीर के लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये एक बड़ा जिला था और खेलने के लिए कोई ग्राउंड या कोई इस तरह का बड़ा मैदान नहीं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे सिकंदर याद साहब ने अपने दौर में नौजवानों के लिए ये जो इसकी बुनियाद रखी थी, तो इस हुकूमत को हम